So, Mr. Saklani, you talked about feedback from the society and the stakeholders. You also talked about criticism being welcome. So, I have a specific question. There have been allegations in the recent years of saffronization of the curriculum and subsequently the textbooks. There's equally another narrative saying previously the textbooks were influenced by the left ideology. So, your take on that, you can be very frank on this. We mix up the things. We try to connect it with ideology. Where is the separatization? I don't see anywhere. Because we are just talking about the knowledge. If people say, particularly about history, what is history? We have facts and we have interpretations. That's how historical knowledge is produced. Facts and evidence. Evidence, if new evidences are coming out, should we not go by them? If somebody has written a book 30 years back and he or she wants that this book should be always, it is sacrosanct, it cannot be changed, that is his problem. It will be changed. If something new comes out, why will not change it? We'll change that, just as I said that if something has become irrelevant, the interpretation is very subjective, We try to make history objective. And objectivity is the spirit of history. History is a science, no less, no more. That has been said by a British historian. But history cannot be just like science. It is a social science. So interpretation counts a lot. If I am interpreting from some particular aspect, my viewpoint is something different. Another's can be different. Why not? We welcome criticism. That's why I said we welcome criticism. If they are criticizing it, so I don't see there is any separatization. I see that history is there to make people wise, not to create hatredness, disharmony. We teach history for knowing about the facts, not making it a battleground. So that is how I understand that role of a historian should be. Historian is a communicator, and that communication from the old ideas, traditions, we make aware the new generations. So it is a communicator between generations. So that communication should be eloquent enough, that communication should be effective enough, that communication should be strong enough to realize that what we had been. If I say about Indian knowledge system, where is the separatization there? I am talking about that. I am talking about the iron pillar at Mehroli. I challenge that any metallurgical scientist to develop that type of iron today. It is not possible. Nobody has developed. So should we not say that this metallurgical science was Indian science? We had that, we have produced that type of. If we say that, where is the separatization here? So that type of ideas we are bringing out on the basis of evidence and facts. If I have talked about the Bodhayana Sutra, Pythagoras, is that separatization? It has been proved. And why the Manjul Bhargava been awarded with the field medal? Why? Field medal, India has not given field medal, or this government has not given awarded field medal. It has been awarded by the, it is, parallel to Nobel Prize. So, this is false, This type of allegations, I don't go by them, and it is not my job. I just want to stick to the tradition which is promoting, which is producing the best global citizens who feel proud about their nation, who feel proud about themselves, whose self-esteem is very high. We don't want to produce disappointed or depressed citizens. We want to produce capable, positive, effective, and efficient citizens, not only for India, for the globe. So that is the purpose of that type of work we are doing. Professor Saklani, you said a very interesting आपने एक बात कही कि ये irrelevant चीज़ें हैं वो आप निकाल देना चाहते हैं करिकुलम से। तो उस संदर्भ में अगर एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स में
जैसे गुजरात राइट्स हो गए या बाबरी मस्जिद डिमोलिशन या महात्मा गांधी का असैसिनेशन, वो तो इररिलेवेंट तो नहीं है मेरे नहीं ख्याल नहीं, से। मैं ये कहता हूँ, देखिए महात्मा गांधी का ऐसे असैसिनेशन हुआ, वो कहीं से नहीं निकला, वो है वहाँ। अब आप ये लिखें कि एक ब्राह्मण ने महात्मा गांधी का असैसिनेशन किया, ब्राह्मण नाथूराम गोडसे ने, तो आप सोसाइटी के बीच में, अब क्रिमिनल कैन बी एनीबॉडी। आपका फोकस क्या है? क्या ब्राह्मण सब क्रिमिनल हैं? आप क्यों वो चीज़ लिखना चाहते हैं उसमें? क्यों उस तरह की टिप्पणी करना चाहते हैं? ये तो नहीं हटाया हमने कि महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने मारा, इट इज़ देयर, ये नहीं हटाया। ब्राह्मण नाथूराम गोडसे ने मारा। आपका एम्फेसिस ब्राह्मण पे क्यों है? कोई भी किसी को मारता है, इतने सारे मर्डर हुए हैं, कैनेडी को नहीं मारा क्या किसी ने? क्या लिखा गया कि किसने मारा? उसकी जाति से या सरनेम से उसको पुकारा गया क्या? हिस्ट्री में और नहीं मारे क्या? और भी लोग मरे हैं, बहुत सारे लोगों को। तो क्या इस तरह की अप्रोच ठीक है कि हम पिन पॉइंटली किसी ग्रुप को टारगेट करें, पूरा एक व्यक्ति की उस वजह से किसी एक ने गलत किया और पूरे समाज को हम उसमें बदनाम कर दें? तो हमने निकाला, उसको ठीक निकाला। गुजरात राइट्स के बारे में भी जिक्र है, मगर उस गुजरात राइट्स के बारे में जिक्र करना है तो फिर पूरा सारे राइट्स हुए हैं, उनके बारे में जिक्र क्यों नहीं करते? 84 के राइट्स के बारे में जिक्र नहीं करते? क्या ना बच्चों को इस प्रकार से पढ़ाना चाहिए कि वो ऑफेंसिव बने? क्या बच्चों को इस प्रकार से पढ़ाना चाहिए कि वो समाज में घृणा पैदा करें या घृणा के शिकार बने? क्या वो एजुकेशन का पर्पज़ है क्या? तो वो तो बिल्कुल पर्पज़ नहीं है एजुकेशन का। तो फिर हम सारे राइट्स के बारे में पढ़ाएँगे इतने छोटे बच्चों को? जब वो बड़े हो जाएँगे तो अपने आप पढ़ जाएँगे, किताब में ही पढ़ाना क्या ज़रूरी है? अगर गुजरात राइट या कोई भी चीज़ है तो तमाम सारा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में अवेलेबल है। और जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, वो पढ़ेंगे तो उस लिंक करेंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ? लेट देम अंडरस्टैंड। पर इतनी छोटी-सी किताब में क्या ये सब चीज़ें पढ़ाने के लिए हैं किताब? एनसीईआरटी की किताबें पूरे देश के लिए हैं, पूरे देश के बारे में हैं, तो क्या अच्छी बातें छोड़ कर के ये सब लड़ाई झगड़े की बातें ही बच्चों को पढ़ानी चाहिए क्या? बच्चा अगर पढ़ेगा, उसका इंटरेस्ट होगा तो बाद में सब जगह अवेलेबल है। वो छोटी-सी किताब से अगर कुछ चीज़ कम कर दी गई है, तो उसके पीछे इतना ह्यू एंड क्राई अगर मचा रहे हैं हम, तो वो फिर समझ सकते हैं आप कि वो क्या है, ठीक है कि नहीं है। ये सब आप लोगों के ऊपर है, डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह उसको इंटरप्रेट करते हैं। हम तो इस ढंग से देखते हैं कि हमें बच्चे को एक पॉजिटिव सिटीज़न बनाना है, वेल इन्फॉर्म्ड बनाना है, जैसे मैंने बताया, और उसको कितनी अच्छी बातें बता सकते हैं हम, वो उस किताब का पर्पज़ है, इतनी छोटी-सी किताब का। उसमें सब चीज़ें नहीं आ सकती हैं। तो इसलिए ये घृणा, मार-काट, ये सब चीज़, इतिहास का मतलब ये सब चीज़ नहीं है। इतिहास का मतलब इवोल्यूशन है। कैसे सोसाइटी इवॉल्व होती है, कैसे आइडियाज़ इमर्ज करते हैं, कैसे सोसाइटी और आइडियाज़ मिल कर के ह्यूमन बीइंग को बेस्ट बनाते हैं, जो कि पूरे सोसाइटी के लिए काम आए, देश के लिए काम आए। वो पर्पज़ एजुकेशन का है, जो मैं समझता हूँ। मगर ये पर्पज़ नहीं है कि हम एक वायलेंट नागरिक पैदा करें और एक डिप्रेस्ड लोगों को पैदा करें, जो तनाव में रहें, जो प्रॉब्लम में आएँ। वो तनाव और समस्या और घृणा, हिंसा, वो सब पढ़ाने की विषय नहीं है। वो सब जिसको पढ़ना है वो कहीं से भी पढ़ सकता है, समझ सकता है। पर इतने छोटे 45-40 मिनट के पीरियड में, इतनी छोटी किताब के माध्यम से क्या वो फ़ोकस होना चाहिए? इसलिए, और वो पढ़ाया जा रहा था। अब कोविड हुआ, उसमें फिर ये देखा गया कि क्या इसमें से कम किया जा सकता है, कम कर दिया। अब तो वो किताबें सब बदल जाएँगी। रिवाइज़ करने का मतलब नहीं है। अब एनईपी के हिसाब से किताबें बनी, जैसे मैंने बताया। अब 3 की किताब आ रही है, 6 की आ रही है, एकदम डिफरेंट किताबें हैं। लोग कहते हैं आप किताबें रिवाइज़ कर रहे हैं। रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं, हम तो नई किताबें ला रहे हैं, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है।